वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमावदीपो छवि सुंदराय तस्मै मां प्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमस्ते। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद भक्तवृंद इस्कॉन बाहनागारू भक्त मान आसते एठारे एक श्राद्ध दिवस हिसाब से कथा कीर्तन व्यवस्था कर समस्त हार्दिक धन्यवाद। ये आमर इस्कॉन एक प्रचार केंद्र या कहुच्छी कृष्ण भावनामृत आंदोलन। कृष्ण भावनार च्युत हेबा जोगु आज लोक मान दुख दुर्दशा समस्ते ही मायार दासत्व करथिलागि ए संसार दुख दुर्दशा ही केवल भोग कर। इस्कॉन तरफर प्रभुपाद ये सब सैनिक मान को नियुक्त कर सर्वत्र ये माने मायार विरुद्ध संग्राम कराया कृष्ण चेतनार अनाइवाई ये व्यवस्था कर सबार आयोजन उद्देश्य हूँ आम केमी कृष्ण चेतना रही पारिबा। कृष्ण चेतना जदि आम रही पारिबा ताहले आम आमर यथार्थ स्वरूप अवस्थान करि पारिबा। स्वरूप अवस्था आम समस्ते ही हूँ भगवान कृष्णकर नित्य दास। ये स्थिति जितेबले आम आसवा से आम समस्त प्रकार दुख दुर्दशारू मुक्त हो पारिबा। तेणु आम इस्कॉन तरफर केतक भक्त गोटे स्कूल प्रोग्राम को जाइए। स्कूल प्रोग्राम को जो जाइए स्कूल जे हेड टीचर से भक्त मान को कहते जे आपण संस्था जे कड़ा सब नियम दि जाए चारिटा विधान आम समस्ते गृहस्थ लोक आम केमी चारि प्रकार विधि पालन कर कृष्ण भक्ति कर। मोर गोटे प्रश्न अच्छी आजिकल सर्वत्र डिस्काउंट दिया जहाँ कि किनवा गले डिस्काउंट दिया कृष्ण भक्ति किसी डिस्काउंट अच्छी कि हरे कृष्ण तो चुपचाप धीरे धीरे डिस्काउंट अच्छी कि प्रश्न पचारे हेड टीचर हमारे भक्त मान से भक्त माने उत्तर देते हसिकी डिस्काउंट कहीं इंस्टॉलमेंट रे आप भक्ति करी पारिबे। समस्त बुझी पारछन्ती का डिस्काउंट कहले रिहाती कौन जिनिस किनवा गले डिस्काउंट दिया रिहाती दिया पैसा रिहाती दिया छाड़ दिया संस्कृत छाड़ दिया
ইনস্টলমেন্টে কথার অর্থটা কোন দফা হিসাবে আমি একা সাথে পূর্ণ রূপে কৃষ্ণকে সমর্পণ নাই পারিবা নাই আমি ইনস্টলমেন্ট হিসাবে এইপরি বড়ি 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 পূর্ণ ভগবত ভক্তি স্তরକୁ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବା। ତ ଭକ୍ତମାନେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି 12 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟା ମାସ ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶାଖ ମାସ ମାଘ ମାସ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 12ଟି ମାସ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମାସ ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ 3ଟି ମାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ବହୁତ ମହତ୍ୱ କଥା ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଆସାମରେ ଗୌହାଟୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଏ ହେଉଛି ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ସେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତି ବାସ କରୁଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ତଥାପି ସେମାନେ ବିବାହ ହେବା 12 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ତଥାପି ସେମାନେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଦେଲେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଦେଲେ ଏକ ସନ୍ତାନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁହଁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜି ମୋର ଦିନଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇପରି ବିବାହ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ମନେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଇପରି ମତେ ନିନ୍ଦା ଭର୍ତ୍ସନା କଟୁ ବାକ୍ୟରେ ଏଇପରି କେତେ ପ୍ରକାର ଅପବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ବନକୁ ଚାଲିଯିବି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀ ସେ ସେତେବେଳେ ପତିଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିଦେବ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ସେଇଠାରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖର କଥା ଶୁଣି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁ ତାହେଲେ ଭଲ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚାଲିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଯାଇପାରିବେ। ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପତିଦେବ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଣତ ହୋଇ କାତର ଭାବରେ ମନର ଦୁଃଖ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 5 ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କାମନା କରୁଛ? କେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ପୁତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ঋণজাত পুত্র, তৃতীয়টি ହେଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମଜାତ ପୁତ୍ର, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ସୁସନ୍ତାନ, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଅକର୍ମଜାତ ପୁତ୍ର। 5 ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଇଛି ଶତ୍ରୁଜାତ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେହି ଯଦି କାହାର ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେବେ ତାକୁ ଯଦି ମର୍ଡର କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ୟାର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିବ। ୟାର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆସି ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବେ
ଏ ଜଗତ ଏଇପରି ସବୁ ପୁତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମାରେ ଦେଖିବା, ଏ ଯେ ଆତ୍ମଦେବ ନାମକ ଜଣେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ବହୁତ ଦାନ ଧାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେହିପରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସବୁ ଭର୍ସନା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ସେହିପରି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବନକୁ ଯେତେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ନା ଅନଶନରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଅନଶନରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ପିପାସାର୍ଥ ହୋଇ ତୃଷ୍ଣାର୍ଥ ହୋଇ ଏକ ସରୋବର ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପାଣି ପିଇକିରି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେତେ ବସିଲେ, ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ତ ସରୋବରରେ ପାଣି ସେ ପିଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ତେଜ ଦେଖି ଏ ଚକିତ ହେଇଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ଉଠି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁଥିଲାଗି ଏତେ ମଳିନ ବଦନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖୋଲିକିରି ମତେ କହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇପରି ମୋର 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତଥାପି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳେ ମତେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହନ୍ତି, ଆଜି ଏ ନିଃସନ୍ତାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଯାତ୍ରା ଅଶୁଭ ହେଇଗଲା। ଏଇପରି କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ମତେ ଭର୍ସନ ବାକ୍ୟରେ ତିରସ୍କାର କରୁଥିଲେ, ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଅନଶନରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର ସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣ କେମିତି ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅର୍ଥ ସେ କୌଣସି ସତ୍ କାମରେ ଲଗାଇ ନଥିଲେ, ଦେବ ସେବାରେ ଲଗାଇ ନଥିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ନଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ନଥିଲେ। ଅଥଚ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ यार ये जन्मरे कोर पुत्र सन्तान हब नहीं, यहीपरि 7 जन्म काले भाग्य ये कौन पुत्र सन्तान नहीं। तो सन्यासी ठाकुर ध्यानस्थ पूर्व इतिहास पूर्व जन्म इतिहास जानी से कहते, हे ब्राह्मण देव, आपन पूर्व जन्म एमती कर्म करथिले जो कर्मेर परिणाम स्वरूप केवल यही जन्म 7 जन्म काल अपन के भाग्य कौन पुत्र संतान नहीं। ये से तो सन्यासी ठाकुर चरण धरी केते मनोय विनय करी कहछन, आपन तो महाप्रभावशाली, आपने कृपा करी मोर भाग्य परिवर्तन करी दे पारबे, आपने कृपा करी मते पुत्र संतान प्रदान करंतु। सेतेबेले सन्यासी ठाकुर कहछन्ति, भाग्य रे जा लिखा है जी ता व्यतिक्रम करी यदि पुत्र संतान प्राप्त हेब, ताहले सेई पुत्र तार बहुत दुख कष्ट भोग करिया हेब। जेमिति महाराज चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु ससगर पृथ्वी एक छत्र सम्राट थिले,
ଯାହାଙ୍କର 1 କୋଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବନ୍ଧା ଥିଲେ, କାହାର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ବି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି କୃପାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଯୋଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେ ଭୋଗ କଲେ, ଯୋଉଥିଲାଗି ତା ଭିତରେ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଗଲା। ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବତ ଭଜନରେ ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ନାରଦଙ୍କ ଚରଣ ସମର୍ପଣ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ତା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ଯଦି କେହି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛିତେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି କହିଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣকে ଏହିପରି କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫଳ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଦେଲେ, କହିଲେ ୟାକୁ ନେଇ ପତ୍ନୀକୁ ଖୁଆଇଦେବ, ଆଉ ପତ୍ନୀ ଯଦି 1 ବର୍ଷ କାଳ ସଦାଚାର ରହିବେ, କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ଲିପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏହିପରି ସଦାଚାର ରହିବ, ତାହେଲେ 1 ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଅର୍ଡର ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର ସେଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେତେ ବସନ୍ତୁ ସେଠି ବସନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଏ ଆତ୍ମଦେବ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫଳଟା ଆଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ପତ୍ନୀକୁ ବୁଝାଇ ସବୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନା ମୋ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଆସୁ। ଏତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି ମୋ ପେଟ ବଢିଯିବ, ଅଧିକ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏତ ଧନ ସମ୍ପଦ କଣ ହବ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପେଟ ଭରିକିରି କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏ ଫଳ ଭକ୍ଷଣ କରି ମୋ ପେଟ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଅଧିକ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚୋର ଦସ୍ୟୁ ଖଣ୍ଟ ଯଦି ଆସିବ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରକାର ଅଜୁହାତ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଖୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ସଖୀ ମୋର ପ୍ରତିଦେବ ଏଇପରି 1 ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଙ୍ଗର ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର କୃପା କରି ଏ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଫଳ ଯଦି ଖାଇବ ତାହେଲେ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଆସିବ। ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଆସିବ, ସେ ସନ୍ତାନ ଯଦି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ପେଟରେ ଯଦି ରହିଯିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ କେମିତି ତାହାକୁ ବାହାର କରିବି? ପୁଣି ଇଏ ବି ଜଣାଯାଇଛି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ସମୟରେ କେତେ ମାତା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ସମୟରେ କେତେ ମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ସେହିପରି ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଆସିବେ, ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କାଳରେ ଯଦି ଏହିପରି ଅଟକି ଯିବ, ମୁଁ ତ ମରିଯିବି। ମୋର ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହବ? ତେଣୁ ଏ ଫଳ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏହିପରି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଜୁହାତ ସେ ଦେଖାଇଲେ, ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ, 3 ମାସିଆ କହିଲେ। ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ ଉପାୟ ବତାଇଲେ, ଠିକ ଅଛି তুমি ଏ ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ମୋ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ତାକୁ ନେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବେ। ତୁମ ପେଟରେ କେବଳ କପଡ଼ା ଲଗେଇକିରି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ହିସାବରେ ଏ ଘର ଭିତରେ ରହିବ, ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମୋର ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେବ ତାକୁ ପଠେଇଦେବି ତୁମ ପାଖକୁ, ସେଟା ତୁମେ ଇଏ କହିବ ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ।
ये ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଦ ଫଳ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଘରେ ଯେ ଗାଈ ରହେ ସେ ଗାଈକୁ ଖାଇଦେଲା ସେ ଗାଈକୁ ଖାଇଦେଲା ଏହିପରି ପେଟରେ କପଡ଼ା ଫଳ ଜଳେଇ ଘର ଭିତରେ ରହିଲା କେବେ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯେତେ ଯଥା ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଏ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମଦେବ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ଫଳ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜାତ ଏ ଖବର ଗାଁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା ଯେ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆତ୍ମଦେବ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଛି ସେ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ମାସ ପରେ ଗାଭୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଗଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଉ ବଡ ଗାଭୀକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗାଭୀର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କରି ସନ୍ତାନ ଜାତ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ କାନ ଦୁଇଟି ଥିଲା ଗାଭୀଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଗଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ये संतान धुंधुली आत्मदेव पत्नी होती धुंधुली धुंधुली भगिनी सन्तान जो निजर सन्तान बोली परिचय देते से तो निजर सन्तान को ना दे धुंधुकारी दुई प्रकार सन्तान को नहीं 3 मास धरी केवल महोत्सव है जन्मोत्सव प्रतिदिन भूरी भूरी भोजन दि जाता देखा जाऊँगी 2टा पुओ जो बड़ होची बढ़ुची 2 जन सभा 2 प्रकार अलग प्रकार जने अति शांत शिष्ट पिता माता अनुगत और जने पिता माता अबाध्य दुष्ट मान संग कर देखा दुष्ट मान संग हो देखु देखु कौन करे सहित वन को जाए पशु शिकार करुची पशु शिकार कर पशु कंचा मांस खाऊची मद पीऊची देखु देखु कौन हो संतान इतने दुष्ट परिणत हो गला सहित जो खेलुची कौन पिला से रगी जो संगे धरने कूह भर पकई दे दुष्ट परिणत हो देखे देखी से दुष्टर चरम सीमार पहुंचीगला बेश्यासक्त हो पड़ा 5 बेश्या प्रति आसक्त हो इे गाभीर गर्भर जो सन्तान जात होते से सन्तान अति अनुगत पितामाता अनुगत भगवान भक्त समस्त प्रिय हो गाँव समस्त प्रिय हो देखा जाऊँगी कौन ये दुष्ट सन्तान धुंधुकारी 5-5टा बेश्या मान चाहिदा पूरण करने बापा मान पाखक आसी कहते धन दे ते पिटिबी मारिबी बाड़ीबी एमती सब सत्य सत्य से बाड़ू पिता माता आत्मदेव से अत्यंत दुखित हो गले अरे यहीपरि सन्तान नथिबार ये सन्तान केते प्रकार दुख देउछि तो एठारे कहबार उद्देश्य होछि ये शत्रुजात सन्तान अर्थात पूर्व जन्म प्रति यही शत्रुता आचरण करथिले ताको मारी दैथिले किंतु से प्रतिशोध नहीं पारि नथिले वर्तमान से आसत से शत्रु वर्तमान आसीछि यार पुत्र रूप आसी से प्रतिशोध नौची पिता माता केते प्रकार अत्याचार करछि पिता माता धरुछि यही पिता सही पड़ला ना से कौन है
ନା ପିତା ଆତ୍ମଦେବ ସେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ଆ ଦେହ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଏ ମହାଭାଗବତ ପିତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ପିତା ଆପଣ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ये जगत किए कहार पुत्र किए कहार स्त्री ये सब मोहर मुक्त हो जातु, अपने गृह त्याग कर वन को चली जातु। भगवान श्री कृष्ण को चरण अनन्य भाव मनोनिवेश करी भगवान कृष्ण को भजन करतु, तार समस्त प्रकार दुख अवसान घटब। ये देह त्याग कला परम सिद्धि प्राप्त हो भगवान के पाख को फेरी जाई पारे, पराशांति प्राप्त हो। तो गोकर्ण जो यहीपरि परामर्श देले सेतेबेले आत्मदेव कहते मु ये स्त्री पुत्र को मोहर मुक्त वन को ना चली जीवी सेठारे जाई माने मु कौन करी केमिति दिन बिताइबी। तो सेतेबेले गोकर्ण कहते आपण वन को जाई प्रतिदिन भगवान को माधुर्यमय लीला ये दशम स्कंदे जो व्यक्त करा दशम स्कंदे कृष्ण को लीला विषय वर्णन करा प्रतिदिन ता अध्ययन करंतु, यही भागवत कथा अमृत पान करंतु, आ भगवान के नाम पाटी उच्चारण करंतु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम भगवान का अभिन्न यहीपरि निष्कपट चित्तरे भगवान का नाम पाटी उच्चारण करंतु, आप भगवान को लीला कथा ये अध्ययन करी कान बाट तर श्रवण करंतु, यहीपरि भगवान के चरण में मनोनिवेश करंतु। यहीपरि भगवान के महान भक्तिर परिणत हो जाए समस्त प्रकार दुखेर अवसान घटे। जो ये कथा कहले आत्मदेव ये पुत्र को सत् परामर्श से भागवत दशम स्कंद सांगे नहीं गृह त्याग कर वन को चलीगला। वन को जाए से गोकर्ण परामर्श अनुसार प्रतिदिन यहीपरि भागवत दशम स्कंद भगवान कृष्ण को लीला कथा से अध्ययन करते निजे श्रवण करते मनोनिवेश करते भगवान का नाम से कीर्तन करते और यहीपरि भगवान के निवेदित फलमूल आदि अर्पण कर प्रसाद रूप ग्रहण करते दिव्य भगवत भक्तिमय जीवन यापन कर जीवन परम सिद्धि प्राप्त है भगवान के पाख को इे धुंधुकारी देखे पिता घर छाड़ी वन को चली जाए माँ अच्छी माँ के पाख को आसी कहे जे मत धन दे तो न दे तो मुझे बाड़ी पिटेबी आ ये कित थर बाड़ी बाड़ी माता माँ को माँ से भयभीत हो थोड़े थोड़े पुआ भर पड़गला ये दुष्कृति जात पुत्र ये कथा कहा जाए 5 प्रकार पुत्र मान मध्य प्रथम हूँ ये शत्रु जात पुत्र यहीपरि शत्रुता आचरण पिता माता सहित शत्रुता आचरण यहीपरि दुर्भाग्य शुणी धुंधुकारी मुखर यहीपरि दुर्भाग्य कथा शुणी माता भयभीत है धुंधुली धरे धरे कुआ भीतर पड़ी मरिगला। ये परिस्थिति गोकर्ण से गृह त्याग कर तीर्थ परिक्रमण में बाहरीगला। घर बर्तमान कहीं ना पिता थे से तो वन को चली जाती माँ थी कुआ भीतर पड़ मरी जाए और से 5-5टा बेश्या को भरण पोषण करते बाहर
से नहीं घर को आम उठाइला बेश्या माने अलग अलग चाहिदा के मत बेनारसी शाड़ी दरकार के मोर घोड़े नुपुर दरकार के मोर नोज रिंग दरकार के इयरिंग दरकार के मोर हार दरकार ये सब चाहिदा पूरण कर घर को अर्थ ना कौन कर बर्तमान दोषवृत्ति करने आरम्भ कला चौर्यवृत्ति आरम्भ कला ये चौर्यवृत्ति कर दोषवृत्ति कर धन आनी से सब बेश्या मान को चाहिदा पूरण करते गोटे चाहिदा पूरण तो पुणी आउ गोटे चाहिदा यही प्रतिदिन से दोषवृत्ति करने से पांच पांचटी बेश्या गोटे जगार बसी से परस्पर मत कथा होती या पाखे जिते धन थी आम सब नहीं जा सारा जीवन जब बसी खाइबा आमर शेष हम ना या पाखे कौन धन ना बर्तमान आम मन के चाहिदा पूरण करने से चौर्यवृत्ति कर चोरी कर दिने ना दिन से धरा पड़ से धरा पड़ सहित आम मन दंड हम ताठू एक काम करा जाओ से जिते बड़े अर्थ पाई बाहर को चली जीव से तो आम बहुत सुंदर सुंदर आइटम सब तैयारी कर रखीदेवा रात से जो फेर खुआईदेवा आ से श्रांत क्लांत हो शुईज हाथ गोड़ गोड़ दौड़ी बांधी फसे चढ़ीदेवा जिते मरीज से घर भीतर गात कर भीतर पुतीदा जे आम समस्त स्थान छाड़ी चली प्लान कर समस्ते से दिन की से जाते चोरी करने बहुत रात फेरी ये मान से बहुत सब आइटम तैयारी कर रखी माने शेष थर भल भल खावा के देवाक पड़ो भल भल आइटम सब तैयारी रखी से रात फेरी मध्यरात्रि चोरी कर अर्थ संग्रह कर ये पांच पांच बेश्या से प्लान अनुसार बहुत ही आदर सहकार खुआला पेट भरिक खाइला शांत क्लांत हो पड़ा गभीर निद्रा शुईगला से पांच पांचटी बेश्या उठी कौन कर हाथ गोड़ सब दौड़ी लगाई फाँसी चल से मरु ना ये माने से तार शरीरटा से छोटी पटी हो मरु ना बेश्या मान महा विपदग्रस्त अवस्था पड़े से प्लान कर कौन शुक्ला काठर केरोसिन लगाई तड़े निआ लगे तड़े निआ चलुची फाँसी चलुची छोटी फुटी मरीगला से फाँसी उड़ाई नहीं गात कर घर भर पुतीदे भोर भोर से स्नान सब छाड़ी मरला पर भूत देह प्राप्त हो कहीं सारा जीवन केत मर्डर कर पिता माता जी दुख कष्ट केत प्रकार सब कार घर निआ लगे दे तार मजा हो घर निआ लगे तार मजा लगे आनंद हम अंदर पुओ को धरी कूआ भर पकईदेव तार आनंद यही आनंद बर्तमान से यही कम करवा जो बेश्या हाथ मृत्यु हाथ मृत्यु हो गला से भूत शरीर प्राप्त भूत शरीर जो प्राप्त हो गला घर केते प्रकार उपद्रव सन्ध्या है माने इटा पत्थर चारिआडे आसी गाँ लोक मैंने समस्त बुझीपारे ये धुंधुकारी मरी भूत हो ये घर रोचे तेनाली सन्ध्या कई आस ना लोक मुखर ये खबर पहुंचीगला गोकर्ण भाई गोकर्ण एक महाभागवत भगवत महाभागवत से तीर्थ परिभ्रमण से पहुंचीगला से भयंकर दुर्दशा उद्धार करने गया आदि विभिन्न तीर्थ पिंडदान कर पिंडदान करी बेश किसी दिन पर से गाँव को फेरी आस घर तो कई ना सन्ध्या हो जाए सन्ध्या समय
से चिंता कले मु आज शोईजी प्रातः काल उठी नित्यकर्म सारी गाँ लोक मान सहित मिसबी जिते से रात्र शोई जाती एमती समय चारिआड़ इटा पथर आसी पड़ी केते से धुंधुकारी मोरी जो भूत शरीर प्राप्त होते महिष रूप धारण कर आसे बाघ रूप धारण कर खायापा आस केते कुंभीर रूप धारण कर आस अजगर सर्प रूप धारण कर आसपरी केते प्रकार से उत्पात आरंभ कर गोकर्ण महाभागवत से बुझीपारे अपघात मृत्यु हवा जो यहीपरी प्रेतात्मा शरीर के प्राप्त हो यहीपरी काम कर पचार तुम किए तुम परिचय कौन हाँ कथा कही पारना अशरीरी गोकर्ण पाखे कमंडल थिला कमंडल जल नहीं मंत्रपुत कर फिंगीदेला से कथा कहना शक्ति आसे कहूँ तुमार भाई धुंधकारी बेशा मैंने जातम मत मारी मरीला पर मुझे अशरीर प्राप्त होते दुख पाँच के कष्ट पाँच भाई तुम्हें कृपा कर भूत शरीर मत उद्धार कर तो से गोकर्ण कह तुम खबर शुणी गयादि विभिन्न तीर्थ पिंड दान कर तुम ये पद उद्धार ही करना तो से धुंधकारी कहे मुझे सारा जीवन एत पाप कर शत शत बार गया पिंड दान कले भी मुझे उद्धार ही पारे ना अन्य कौन उपाय करता ना मुझे असह्य पीड़ा भोग कर गोकर्ण रात्रि जाक चिंता कले कौन उपाय निर्णय कर पारे ना प्रातः काल नित्यकर्म सारी गाँ लोक मान पाखे आसी पहुंचे गाँ लोक बहुत भल पहुँचेगा बहुत दिन पर से फेरी आसते भाई कर अवस्था कथा सब व्यक्त कले से माने शुणी कौन उपाय कौन पंथा दे पारे ना तेणु से त्रिवेदी चतुर्वेदी ब्राह्मण मान जो मैंने गाँ लोक मैंने से गोकर्ण को कहते तुम्हें गोटे काम कर सूर्यदेव को आराधना कर सूर्यदेव जो उपाय बताइबे से अनुसार कर भूतदेव उद्धार हो गोकर्ण एत पावरफुल थी महायोगी से जोग बल सूर्यर गति रोध कर सूर्यर गति जो रोध करदे से हाथ जोड़ी सूर्यदेव के पास प्रार्थना कले मोर भाई ये दुर्दशा केमी से उद्धार है तो से सूर्यदेव कहे हे गोकर्ण तुम्हें एक शुभ दिन देखी ये भागवत कथार आयोजन कर तुम्हार भाई जे भूत शरीर अच्छी तुम मुखर जिते भागवत कथा श्रवण कर ये दुर्दशा उद्धार हो पंथा कथा कहले किए सूर्यदेव से गोकर्ण यही कथा गाँ लोक मान समस्त जनइले गाँ लोक मान एक शुभ दिन देखी भागवत कथा परिवेशन दिन ठीक करले चारिआड़ सब प्रचारित हो गला गाँ लोक मान समस्त आसवे गोकर्ण मुखर भागवत कथा श्रवण करने जार जहाँ सब पाप रही दुर्दशा रही से मुक्त हो उन्होंने गाँव सब लोक मान सब आज उपस्थित हो गल हजार हजार श्रोता सब उपस्थित हो गल शुभ दिन शुभ क्षण ये गोकर्ण व्यासासन बसी भागवत कथा परिवेशन करने जामती समय भाई भूत शरीर प्राप्त होता धुंधकारी से आज उपस्थित हो गला कौटी सी अवस्थान कर तो अशरीरी गोटे बांश थिला ये जमी गोटे बांश लगी पांडाल मझे सेमती गोटे बांश थिला जो बांशर 7टी गंठी थिला से बांश को आश्रय कर अवस्थान कर गोकर्ण भागवत कथा परिवेशन कर प्रथम दिन भागवत कथा जो व्यक्त करले भागवत कथा विश्राम देले से बांश गोटी गंठी सशब्द
फाटिगला समस्त शुणी पारे द्वितीय दिन से भागवत कथा जो शेष है आउ गोटे गंटी फाटिगला यहीपरि 7 दिन 7टी गंटी सब फाटिगला जब फाटिगला से बांशरू से भूत शरीर प्राप्त धुंधकारी भगवान का परि रूप प्राप्त हुई भगवान का जमी चतुर्भुज रूप श्याम वर्ण से भगवान विष्णु परि रूप प्राप्त हुई प्रकट हो गला भगवान विष्णु द्वारा प्रेरित हुई विष्णु दूत मान वैकुंठ विमान नहीं से आस उपस्थित हो गोकर्ण ये धुंधकार की इनभाइट करी से विमान बसाया जिते बड़े कहले तो से गोकर्ण विष्णु दूत मान को कहते केत सब श्रोता बस और आपण मैंने कहीं गोटे विमान नहीं आसिले समस्त गोटे गोटे विमान आनिबा कथा गोटे विमान कहीं नहीं आसिले से तो विष्णुदूत मान कहते हे गोकर्ण तुम्हार भाई भूत शरीर प्राप्त होता भूत शरीर मान असहनीय पीड़ा से भोग कर से जिते बांश को आश्रय कर प्रभु भागवत श्रवण करता से एकाग्र मन श्रवण करता श्रवण भागवत विश्राम देवा पर पुणी मनन करते जहाँ शुणिले से कथा से मनन करते मन रखापी 7 दिन निष्ठा सहकार तुम मुखर यही भागवत कथा श्रवण पूर्ण फल से प्राप्त है जेते लगी समस्त दोष से मुक्त हो जाए भूत शरीर से उद्धार हो जाए भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित विमान आम धरी आसी विमान बस भगवान पाख नहीं जावा जिते श्रोता सब त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी बड़ बड़ पंडित बड़ बड़ ब्राह्मण मुंडे हाय हाय ठीक कथा आम नाम मात्र बसीचु किंतु आम मन कथार नाला केत घर को दौड़ी हाँ केते पुओ झील कौन कर सियाड़ जाऊँगी हाँ केते ये कथा सर से मनोभाव थिला केते आम प्रसाद पाइबू हाँ यहीपरि आम चिंता भागवत कथार मन ना हाँ बसे किंतु आम श्रवणर फल प्राप्त हो पारे समस्त देखले समस्त सामने से धुंधकार भूत शरीर प्राप्त हो भगवान रूप जो प्राप्त है विमान बसाई विष्णु माने नहीं चलीगला कौटा को वैकुंठ समस्त देखिले तो समस्त उठी आज से गोकर्ण पाखे पुणी प्रार्थना कर हे गोकर्ण आम थे ठकीचु आ ठकबार ना आप गोटे शुभ दिन देखिए आउ थे भागवत कथा आयोजन करते पुणी श्रावण मास शुभ दिन देखिए आउ थे जो भागवत कथा आयोजन करगला जो प्रथम थर श्रोता थे से माने समस्त प्रकार चिंतार मुक्त हो गया किए स्त्री किए पुत्र किए पुओ ये सब चिंतार मुक्त हो गए संसार चिंतार मुक्त हो गए समस्त प्रकार चिंतार मुक्त हो एकाग्र भाव गोकर्ण मुखर भागवत कथा श्रवण करने आसी बस प्रतिदिन मन इे सियाड़े जीवन ना थे ठकी शिक्षा पाई जाती तेणु एकाग्र भाव 7 दिन यहीपरि श्रवण कर मनन कर समस्ते ही भागवत कथा श्रवण पूर्ण फल प्राप्त हो जाए संख्यक श्रोता थे हजार 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 विमान सब आज उपस्थित हो गला जन को गोटे गोटे विमान में बसाई भगवान पाक को नावा यह हूँ भागवत कथा यही प्रसंगे कह जे
ଏ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଏ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଜାତ ପିତା, এই শত্রুজাত পুত্র পিতাଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଆତ୍ମଦେବ ବୋଧେ ତାକୁ ବଧ କରିଥିବେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଆସିଛି ପୁତ୍ର ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ, ମାତାଙ୍କୁ ଏଇପରି ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ସେ ସାର୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ 5 ପ୍ରକାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଜାତ ପୁତ୍ର। ଯାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରନ୍ତି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବଦଲା ନେବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଋଣଜାତ ପୁତ୍ର, ମାନେ କାହା ପାଖରେ ଋଣ କରିଛନ୍ତି ପରିଶୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସେତ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆସି विविध जगह ऋण कर पितामाता जश को नष्ट कर ऋणजात पुत्र। उदाहरण देना समय पार हो जाए अतिक्रम हो जाए संख्या तृतीय नंबर पुत्र दुष्कर्म जात पुत्र। पूर्व जन्म में बहुत प्रकार दुष्कर्म कर दुख दे से प्रतिशोध नहीं पारे से पुत्र रूप आसी बर्तमान विविध प्रकार दुष्कर्म द्वारा दुख जमी आम देखा भागवत रही बेन बेन कथा समस्त जानते आम व्याख्या करवा ना भागवत रही एत दुष्कर्म रक्त होते जो पिता अंग पुत्र दुष्कर्म देखी अत्यंत दुखित हो गृह बन को चले आम व्याख्या करना समय तृतीय चतुर्थ नंबर पुत्र सुसंतान। सुसंतान माने जिते बड़ हम सांगे सांगे पिता माता को अनुगत पिता माता सेवार युक्त हम जिते विवाह हम बाहा पर निजर स्त्री झील पुओ ये बापा मान सेवार नियुक्त करदेव ये हूँ सुसंतान। पिता माता मरीगले श्राद्ध शांति करेंगे तर्पण करेंगे सुसंतान। जिते बड़े यही कथा वशिष्ठ मुनि व्यक्त कर से ब्राह्मण को शुणाउले से ब्राह्मण शुणी से गुरुदेव के चरण प्रणत कहते गुरुदेव गुरुदेव मुझे यही प्रकार संतान प्राप्त होगा चाहूँगी से वशिष्ठ मुनि कहते टे धैर्य धरी बस आउ गोटे प्रकार संतान कथा कहूँ 4 प्रकार संतान कथा कहगला। प्रथम है कौन शत्रुजात पुत्र, द्वितीयटा है ऋणजात पुत्र, तृतीयटा है दुष्कर्म जात पुत्र, चतुर्थटी है सुसंतान। सुसंतान है पिता माता अनुगत पिता माता सारा जीवन सेवा करेंगे मरीगला श्राद्ध शांति करेंगे ब्राह्मण वैष्णव को डाकरी यही आयोजन करेंगे आयोजन करेंगे पिता माता माने ये उद्धार करने कौन अपकर्म जो अगत दुर्गति है दुर्गति उद्धार करने आयोजन करती पुणी तर्पण करती यहीपरि विविध प्रकार। पंचम पुत्र अकर्मजात पुत्र। अकर्मजात पुत्र माने जो पुत्र पितामाता दुष्कर्म जो यदि पूत नामक नरक पतित से नरक उद्धार कर तेने पुत्र पुत माने नरक गोटे पुत बोली नरक रही 84 लाख प्रकार नरक माने ये कहा जाए शास्त्र केते प्रकार 84 लाख प्रकार नरक। भागवत बहुत सिलेक्टेड केते गुले कथा कहा जाए 27-28 नरक कथा कहा जाए किंतु गर्ग पुराण में कहा जाए 84 लाख प्रकार भागवत पूर्ण रूप विश्लेषण कर पारिबना कहना भागवत 100 कोटी श्लोक मध्य व्यासदेव 18,000 श्लोक मत डिटेल्स वर्णना कर तो विशाल रही तेने संक्षेप से कर 84 लाख प्रकार नरक
ଚଉରାଶୀ ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ନରକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନରକ ହଉଛି ପୂତ ନାମକ ନରକ। ପିତା ମାତା କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ପୂତ ନାମକ ନରକରେ ଯଦି ପତିତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସେ ପୂତ ନାମ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅକର୍ମଜାତ ପୁତ୍ର। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି, ଯେ ଏଇପରି ପୁତ୍ର ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତାହେଲେ ସେଇ ପୁତ୍ର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ବଳରେ। ତ ସେଟା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ କେମିତି ଏଇପରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ତ ସେଟା ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବୈଶାଖ ମାସ ଆଉ 7 ଦିନ ବାକି ରହିଛି, ତୁମେ ମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ, ଯାଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ଆଣି ଏ ଭାଗବତ କଥାର ଆୟୋଜନ